So, hello everyone. My name is Umang Jain, and today I'm having an interview with Kuldeep Chauhan, sir. So, sir, good afternoon, sir. Sir, first of all, actually, I want to take a brief introduction. So, can you please introduce to our audience? Okay, so my name is Kudeep Chauhan basically, and I'm from Indore only. So we have started Your Salon project for 1 year back, and our product is recently launched 2 months back. So what we are doing is Your Salon is basically a B2B SaaS platform for salons and spa. What we are doing is we are elevating the business experience of salons and spa in the market. We have built an MVP for the salons, or we recently expanding our limits to Gen also. So we are expanding. So this is brief about myself and So, what is your product is like? What kind of product you're providing to okay. customers? So अभी हम लोग B2B SaaS प्लेटफॉर्म से बताया कि उनके बिजनेस इनसाइट्स का they don't have any knowledge about the business insights. Roadside salons, they do not have access to technical knowledge and management knowledge. So what we're doing, we are building an easy dashboards for them to understand the basics of the business. ताकि उनको बेसिक्स बिजनेस से पता चलेंगे, उसके बाद they can what they can do is they can have decision based on that. Okay. So we are basically building the MVPs and business insights for salons and spa ताकि वो लोग उसको समझ के और they can make the decision in business world. And my next question is like, what challenge do you face, and what things you have learned when you started your first enterprise business? So challenges तो काफ़ी सारे हैं. So सबसे बड़ा challenge तो था कि the salon community is not that much educated. So to educate them it's very hard for us to. तो education वाला part था, सबसे पहले उनको train करना समझाना, that was very difficult for us. बट हम लोग जैसे जैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे कुछ SOPs बना के हम लोग प्लान करेंगे. स्टार्टिंग में जब हम लोग जाते हैं तो बेसिकली उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज देके आए ताकि दे कैन हैव दी वर्क ऑन दी So, सिस्टम. basically, how do you convince them to buy your product or services? सो प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय करने का सीन ऐसा है कि हम लोग अभी उनको 1 मंथ का फ्री ट्रायल तो दे ही रहे हैं. ठीक है, साथ में उनको बताते हैं कि उनका बिजनेस कैसे एक्सपैंड कर सकता है. हम लोग उनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं ताकि वो लोग अपना जो बिजनेस है उसको बेसिकली बढ़ा पाए इन दो मार्केट में. तो उनको लगता है कि जैसे कि जजा ने भी यही किया था कि उन लोगों ने लीड्स ला के दी थी. बेसिकली हम लोग भी सेम वे में काम कर रहे हैं. हम लोग बेसिकली लीड्स ला के देंगे सैलॉन्स को, ऑनलाइन लीड्स, तो उनका बिजनेस एक्सपैंड करेगा. तो अगर कहीं हमको बिजनेस ला के दे रहे हैं तो दे गोना बाय अस, बाय Yeah. प्रोडक्ट्स. यस. And is there any maintaining cost? Like, if you are providing a product, it might need a maintenance. यस So, यस. तो हम लोग, हमारा जो सब्सक्रिप्शन प्लान बेसिकली इट्स फॉर 12,000 rupees per annum. तो 1,000 rupees per month हम लोग चार्ज करते हैं. okay. And what are the things that you have learned during this era by providing your services and product? मतलब एंटरप्रेन्योर जर्नी में हमेशा रोज कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है. अ, हम लोग बेसिकली जब भी बिजनेस बनाते हैं तब रोज हमें नए नए चैलेंजेस आते हैं. मतलब हो सकता है कंपनी में कोई लोग रिटेन नहीं हो, तो वो भी एक लर्निंग है, उनको रिटेन कैसे करना है. हम लोग जब भी नए मार्केट में जाते हैं तो हमें कुछ नए क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो हम उसको प्रिपेयर करके फिर से नए दिन जाते हैं. रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है. Okay, that's nice. And like, if what if you do that? If you are doing try to scale your business in other states, so would you like to prefer franchisee based model or something like model, or you are going to be a solo company? नहीं, इट्स नॉट फ्रेंचाइजी बिजनेस. एक्चुअली वी आर ओनली सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स. तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी वाला कुछ सीन है नहीं. No, like dealership or something. हम लोग चैनल पार्टनर जरूर ढूंढ रहे हैं जो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. हम लोग चैनल पार्टनर जरूर ढूंढ रहे हैं. बाकी वो भी सब्सक्रिप्शन बेसिस पे रहेगा एंड विल बी गिविंग सम परसेंटेज कट टू दी चैनल पार्टनर्स. बट यहाँ पे फ्रेंचाइजी वाला कुछ सीन है. So, as you had started this business, you might also learn some like team building and leadership skills. So, can you brief about that? यस. तो टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप बिल्डिंग बेसिकली काफ़ी बेसिक्स चीज़ें हैं हमारे. जब भी हम लोग कोई स्टार्टअप लॉन्च करते हैं या कोई भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोर टीम जब तक आप बनाते नहीं हो, कोई भी बिजनेस उसके बिना बन नहीं सकता है. तो जैसे कि मैं मेरे को फाउंडर की बात करता हूँ मैं. तो मेरा को फाउंडर इज़ फ्रॉम दुबई. विशाल गहलोत को मैं दुबई से लेके आया था. वी हैव अ कॉमन फ्रेंड प्रिनस. तो हम लोगों ने बात की थी. मैंने उसकी स्किल सेट देखा कि वो टेक्निकल काफ़ी अच्छा है उसका. आई एम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड एंड मैनेजर बैकग्राउंड. तो मुझे टेक्निकल बंदा एक चाहिए था जो कोर टीम में रहे मेरे साथ में. तो हम लोग लीडरशिप ऐसे बिल्ड की. हम लोगों ने को फाउंडर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने. उसके बाद में फिर हायरिंग की हम लोगों ने बेसिकली. और ज़रूरी नहीं कि आपकी हायरिंग हमेशा सही होगी. तो जब हम टीम बिल्डिंग की बात करते हैं इट्स ऑलवेज ट्रायल एंड एरर वाला सीन चलता है. हाँ. तो हम लोग मतलब
थैंकफुली हम लोग अभी तक सही राह पे हैं। तो जो हाँ. टीम हम लोग वो टीम बना रहे हैं, अभी 8 लोगों की टीम हो चुकी है हमारे पास में, और वी आर डूइंग फाइन। So like if there is any incentive like someone wants an increment or something, so how do you prefer that? Like costing और सब बिठाते होंगे kind of. हायरिंग पोस्टिंग पूछ रहे Yeah. हैं। तो अभी रिसेंटली कल ही ये चीज़ हुई हमारे साथ में। तो हमारी कोर टीम में 2 टेक्निकल लोग थे, फ्रंट एंड बैक एंड वाला एक बंदा था। Hmm. तो ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद एंड वन इज़ फ्रॉम गुड़गाँव। तो इंदौर में एक्चुअली इतने अच्छे रिसोर्स मिल नहीं रहे थे, मैं तो हम लोगों ने आउटसोर्स की बाहर से। तो उनका जो पे स्केल था वो इट्स नॉट, मतलब कंपेयर टू बैंगलोर काफ़ी कम है इंदौर में। हम लोग वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट मच ऑफ अमाउंट टू देम, ताकि उन जो बैंगलोर हैदराबाद और गुड़गाँव में Yeah. मिल रहा था। तो उन्होंने हम लोगों ने ईसॉप्स दिए उन लोगों को, हमने इंसेंटिव नहीं दिया, लेकिन इट्स लॉन्ग टर्म का गोल है उनका, अगर मतलब जुड़े रहने का। तो कोर टीम को आपको वैल्यूज प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो हम लोगों ने कंपनी में कुछ 5% का ईसॉप्स पूल बना के रख रखे। तो हमारे जो कोर टीम के मेंबर्स हैं हम लोग उनको असाइन करेंगे। जब भी हमारा वैल्यूशन विल बी गोइंग अराउंड 1-2 करोड़ के आसपास, हम लोग विल बी बाइंग बैक दैट ईसॉप्स फ्रॉम दैट। तो ऐसा प्लान है। इंसेंटिव बेसिस तो कुछ ही नहीं, बट हम लोग ईसॉप जरूर दे रहे हैं। And like adaptability की बात करें sometimes, so how can you think that your business model is adapted to this India saloon businesses? देखो अभी तक ना रोड साइड सैलून्स के लिए कुछ आया नहीं था रेवोल्यूशनरी। अर्बन क्लैब ने जरूर स्टार्ट किया था, बट अर्बन क्लैब भी पिवट हो गया इन फ्यूचर। पास में पिवट हो गया, मतलब बेसिकली दे स्टार्टेड सैलून बिजनेस, एक कैटेगरी लॉन्च की थी उन्होंने सैलून बिजनेस की। वो लोग होम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो दे ट्राइड कि हम लोग सैलून से ही स्टाफ भेजें ताकि उनको ऑन रोल एनरोल रखने नहीं पड़ेंगे। बट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये हुआ नहीं उनसे पॉसिबल, क्योंकि हमने कई सारी प्रॉब्लम्स आती है जब आप ऑन रोल एम्प्लॉइज को रखते हैं। आपको उसको प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर भी डिफाइन करना होता है। फिर कंपनी लॉज इतने स्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया में कि हम लोग हर एक एम्प्लॉय के बेनिफिट को ध्यान में नहीं रख सकते हैं। Yeah, that costing might be कॉस्टिंग भी for. सबसे बड़ा फैक्टर कॉस्टिंग है। और एम्प्लॉय कंफर्टिंग का भी एक बहुत बड़ा टैबू है इंडिया में कि बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, सब देने पड़ते हैं। तो वो प्रॉब्लम हुआ उनके साथ में, बट इवेंचुअली दे हैड टू डू दिस। तो उन लोगों ने एक खुद ही कैटेगरी लॉन्च की और फिर सारा सब कुछ सेपरेट करके सैलून्स को अलग किया और खुद का एक अलग एंटिटी स्टार्ट की। तो वो पिवटिंग था उनके लिए बेसिकली। Okay, so like you have just started this business, and according to me that you have one mentor or guidance. So who was your mentor and how did he help him? So Help you? my mentor is Kavita Kasliwal Kothari. She is actually CEO of Arihant College. Okay. He used to teach me in MBA college, MBA days. So काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग था उनसे मेरा, और काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मुझे मिले। वो भी एक बिजनेसमैन है, वो पूरा कॉलेज रन करती हैं। तो उनके इंसाइट्स काफ़ी वैल्यूबल रहते हैं मेरे लिए हमेशा, और उनसे कॉलेज में मिला था मैं। तो वो मुझे पर्सनली जानते हैं, तो आई चूज़ हर एज माई मेंटर इन दिस स्टार्टअप। And how she guided you for your business, like? कोई भी कभी प्रॉब्लम आती है मेरे पास में, मैं मतलब उनको डायरेक्टली रीच आउट करता हूँ। और मतलब उनको नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो शी कैन सी फार, मतलब दूर का हमको दिखता है। Vision विजन might be काफ़ी, great. यस, विजन काफ़ी लंबा है, वो दूर का देख सकते हैं जहाँ पे मैं नहीं पहुँच रहा हूँ। उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि तो वो दूर के रीज़न मुझे बता देती कि शायद ये आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, तो उसको पहले मैं माइंड में रखता हूँ, फिर आई प्लान अकॉर्डिंगली। And like, what is according to your future business? Yeah, that you have a current business, okay? And what do you think about your future business, like vision of your business, or how you see it in like 2-3 So we have years? started this in B2B segment only right now. So our plan is to expand this into B2C category also. हम लोग B2C brand भी बनेंगे in future. We'll be having an application in the market on the Play Store, so that anyone can book their appointments, and they can walk into the salons by using our application. They can avail the benefits, coupons, any promotional activities through our application only. तो वो फ्यूचर प्लान है हमारा। और मीनवाइल साथ साथ हम लोग ये चीज़ भी करने वाले हैं अलॉन्ग विद दिस B2C एप्लीकेशन। वी गोना ट्रांसफॉर्म दी सैलॉन्स, जो रोड साइड सैलॉन्स होते हैं। बेसिकली हम लोग अपनी भी 3 कैटेगरीज में सैलॉन्स को डिवाइड किया है। तो हमारा जो B2B सेगमेंट है वो बेसिकली टारगेटिंग ओनली ए कैटेगरी सैलॉन्स, जो प्रीमियम सैलॉन्स होते हैं। बेसिकली दे आर नॉट रोड साइड सैलॉन्स, बट दे आर प्रीमियम सैलॉन्स। किसी मॉल्स में होंगे या फ्रेंचाइजी सैलॉन्स होंगे, लेक में VLCC, कुछ प्राइवेट एंटिटीज भी होती है जिनके 2 से 5 सैलून्स होते हैं। हम लोग उन कैटेगरी सैलून्स के लिए एक B2B एप्लीकेशन लॉन्च किया सबसे पहले हमने। उसके बाद हम लोग B2C लॉन्च करेंगे B कैटेगरी सैलून्स के लिए। तो जहाँ पे कोई भी हमारे जैसे लोग कोई भी किसी भी सैलून में सर्विसेज लेने जा सकते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू। तो हम लोग बेसिकली फुटफॉल बढ़ाएंगे उस एप्लीकेशन से सैलून्स का।
इसके बाद एक सी कैटेगरी सैलून होते हैं जो रोड साइड सैलून होते हैं, 10 बाय 10 की शॉप होती है, 2 3 4 Yeah, चेयर्स होती है बेसिकली। तो वो लोग ना ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते अपने सैलून्स को, तो वी गोना प्रोवाइड फंड टू देम। and some of them like they are not interested to being changed. Many in many दे cases resist like in चेंज India. क्योंकि दे डोंट हैव मनी टू ट्रांसफॉर्म द सैलून्स, No. तो वी गोना प्रोवाइड दैट मनी। हम लोग मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर केशव रिपोर्ट की स्थापना भी लास्ट शिवराज सिंह जी चौहान थे तब हुई थी, बट अभी वो वर्किंग नहीं, उसके पहले ही सीएम चेंज हो गया बेसिकली। तो इट्स प्लान इन फ्यूचर ऑल्सो कि हम लोग फिर से उसको रनिंग करेंगे और वी डू नॉट प्रोवाइड सम फंड्स टू द रोड साइड सैलून्स तो सो दे कैन ट्रांसफॉर्म द सैलून्स। And my next question, like, how do you read the market trends according to your business's salon? How do you acknowledge your market trends? मार्केट ट्रेंड्स तो ऑलवेज अबाउट बीइंग रिलेवेंट टू द सिस्टम। आई थिंक मार्केट से ऐसे मार्केट ट्रेंड्स हम लोग कैसे स्टडी करते हैं पूछ रहे हैं आप। Yeah. मार्केट ट्रेंड्स हम लोग बेसिकली सोशल मीडिया पे जो भी चलता है हम लोग उसको कैच करने का ट्राई करते हैं टू बी रिलेवेंट टू द मार्केट। और इसमें मतलब बेसिकली ब्यूटी सैलून्स में मार्केट ट्रेंड्स तो हर दिन चेंज होता है। Yeah. मेकअप आर्टिस्ट काफ़ी सारे आ रहे हैं बीच में, तो अब इन लोगों की New solution hairstyles, provide new करेंगे, fashion success। design, new तो ideas. रिलेवेंट रहना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए, बट एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी हम लोग ज़्यादा इम्पैक्ट होती नहीं, क्योंकि हम लोग अभी जब तक हमारी डिजिटल विंग वाली आर्म नहीं निकलती है तब तक हम लोग इससे रिलेवेंट रह सकते हैं हमेशा। तो वी कैन ऑलवेज हैव चेंजेस इन सिस्टम अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड्स। स्टडी करने के लिए वी हैव टीम जो मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करती है, उसके बाद में फिर हमको अपडेट करती है इस बारे में। So at first, when you started your business, you might have taken risk. Yeah, as an entrepreneur, you have to take a risk. But at what cost, मतलब, how do you calculate that risk? सो रिस्क कैलकुलेशन तो हमेशा गलत ही होता है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले मेरा एक स्टार्टअप और था माई वेदी, उसको हम लोग शार्क टैंक में सीजन 1 तक लेके गए थे। तो आई हैव पिच्ड माई स्टार्टअप टू द शार्क्स इन द सीजन 1। तो अनुपम सर काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे उस स्टार्टअप को। तो ही वॉज अबाउट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी एंड उसके पहले कोविड हैपेंड। Okay. तो रिस्क था वहाँ भी, वो कैलकुलेशन में नहीं था रिस्क हमारा। और कोविड हैपेंड, वी फेल डाउन टेरेबली और हम लोग इंदौर से हटना पड़ा फिर हम लोगों को। तो लॉन्च बिल्कुल बंद हो गया, कंपनी कंप्लीटली शट डाउन हो गई। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ कंपनी एज अ बिजनेस मैनेजर ऑपरेशंस फॉर एमपी स्टेट। मैंने कुछ पैसा सेव किया 2 साल, 2022 तक मैंने पैसा सेव किया। आई हैड समथिंग 15-16 lakhs इन माई अकाउंट। उसके बाद आई स्टार्टेड दिस कंपनी अगेन, मतलब दैट वाज माय वेरीज रिलेटेड टू फार्मर्स एंड वेरीज एंड ऑल। So we used to provide vegetables and fruits to the customer directly from farm. Just Within like 4 hours. Blinkit and Big Bazaar. Blinkit एंड बिग बास्केट, तो बिग बास्केट काफ़ी पुराना है वैसे। Yeah. Blinkit तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। हमारे टाइम पे इंदौर में सिर्फ बिग बास्केट ही था जो वर्किंग था इस फ्रेश It was that category में। big basket got hype in during COVID years, I guess. हाँ, उसके बाद काफ़ी एक्सपैंड हुए वो लोग। उसके बाद टाटा ने एक्वायर किया उनको, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ उनकी टाटा एक्विजिशन के बाद में हुई एक्चुअली। हमारे टाइम पे सिर्फ बिग बास्केट ही काम कर रहा था मार्केट में, और मतलब हम लोगों ने कुछ हद तक बिग बास्केट को बीट भी कर दिया था। दे वर डूइंग 2000 kgs के आसपास वो लोग करते थे, और हम लोग बेसिकली 3000 kgs के आसपास हमारा डेली का सेल था वेजीज एंड फ्रूट्स का। तो वी अर्निंग वेल ऐसा था, बट रिस्क आया, मतलब रिस्क कैलकुलेशन में नहीं थी, कोविड हो That was uncalculated रिस्क थी। इसके बाद अभी की बात करें तो आई हैड माई प्लान्स इन माइंड कि हम लोग 1 साल तक रेवेन्यू जनरेशन के साइज पे कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने विद इन दिस 11 month ऑफ टाइम स्पैन वी पिवटेड 2 times दिस कैलकुलेशन करने के बाद में। तो पहले हम लोग B2C एप्लीकेशन लॉन्च करते, बट उसके बाद मुझे समझ में आया कि वी वोंट बी एबल टू जनरेट रेवेन्यूज आउट ऑफ दिस वेरी क्विकली। सो वी स्टार्टेड डूइंग द B2B वाला सेगमेंट फर्स्ट। तो दैट्स वी लॉन्च B2B फर्स्ट एंड B2C विल बी आवर नेक्स्ट प्लान until we generate some revenues out of this B2B segment. Yes. और रिस्क की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रिस्क कैलकुलेशन कभी भी होता नहीं है, बट आई कैलकुलेट 1 year का टाइम था मेरे पास रेवेन्यू जनरेशन की, बट वी स्टार्टेड 10 months में हमने स्टार्ट कर दिया रेवेन्यू जनरेशन। बट उसके बाद भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है जो कैलकुलेशन में कभी आती नहीं है, किसी मम्मी बीमार हो जाती हैं इस टाइप से, तो कैलकुलेशन हमेशा कंप्लीट नहीं होती है आपकी। ऑलवेज ऐसा है कि कुछ ना कुछ करते रहना ही आपको, रिस्क तो हमेशा ही है हर चीज़ में। तो कैलकुलेटेड रिस्क भी होती है, अनकैलकुलेटेड भी होती है, सभी चलती है। And like, what social responsibilities are you feeling by your business model? कम्युनिटी को लेवल अप करना, इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे मैं सैलून कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, तो Yeah, that C-level community. यस, तो इस बिजनेस से उनका लेवल अप ही होगा अल्टीमेटली, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेवल देम अप। Okay.
And like, what would you like to give a appreciation to our new entrepreneurs? Like, how do you guide them if they want to start in their new enterprises or something? If they want to start something, be okay for the challenges. मतलब रोज कुछ ना कुछ चैलेंज आने There वाले is हैं a आपको। quote that is risk to यस, risk that one. रिस्क तो है ही, और रिस्क तो इश्क जो भी काफी पॉपुलर हुआ था बीच में, बट आपको ना कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जो आप बोलेंगे यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हाँ, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है एक्चुअली भगवान शायद आपको गाइड कर रहे हैं टू बी वेरी स्ट्रांग अबाउट दी प्रॉब्लम्स, ताकि इससे बड़ी प्रॉब्लम आपको छोटी लगे बाद में आके, आप विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दी बिग प्रॉब्लम्स। yeah. तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है सब आपको प्रिपेयर ही कर रही है अल्टीमेटली, डरना नहीं है, करते रहना बस ये। And what do you think about your legacy and future goals of your companies? लेगेसी तो मतलब मैं अपने आप को सिर्फ डूअर बोलता हूँ कि आई हैव ट्राइड समथिंग एंड डूइंग समथिंग टू बी New. सक्सेसफुल, एंड कुछ न्यू करना चाह रहे हैं हम लोग बेसिकली। Always trying to be an innovative kind यस of person. यस ऑफ कोर्स। और रही बात एक और क्या बताया था आपने, Future goals. फ्यूचर गोल्स, तो वी हैव लाइंड अप सम प्लान्स इन अवर हेड, बट कितने पेपर पे आते हैं कितने मार्केट में आते हैं समझते हैं। That's it. That's it. And my next question is like, how do you network your partners, or if you want to like expanding your businesses? As you said, you have just recently started Nujjan, so there might be a networking. No? यस, तो नेटवर्किंग इज ऑलवेज देयर, हमेशा होती है हमारे इसमें। तो नेटवर्किंग हम लोग कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम लोग रेफरेंस के थ्रू ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इंदौर में जहाँ पे ट्रायल्स किए थे स्टार्टिंग में, उनके थ्रू ही हमें नेटवर्क मिले हैं, उनके थ्रू रेफरेंस मिले हैं, क्योंकि हमने उनका काम अच्छा किया तो शायद वो लोग आगे हमको अप्रोच कर रहे हैं कि आप रेफर कर रहे हैं आगे। तो नेटवर्किंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू वॉट यू आर डूइंग। अगर आपने अच्छा काम किया तो नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो जाएगी मार्केट में रेफरेंस के थ्रू। And like when you started your business, how did you manage your finances, and still now how you managing it? आई डोंट नो यार, मतलब सब हो रहा है, मतलब कैसे भी हो रहा है। मतलब अभी जैसे कल कल ही बात हुई, कल 5 तारीख थी, हम लोगों ने सैलरी देना थी। आई हैड नो आइडिया कि हम लोग अकाउंट में सिर्फ 1500 रुपये रखे थे कंपनी अकाउंट में, बट एनी हाउ विशाल आउट ऑफ नो वेयर, विशाल ने कुछ पैसे डाले कहीं से आए होंगे उसके पास में, एंड वी पेड आवर सैलरीज टू द एम्प्लॉइज। So like if someone wants to start being an entrepreneur, so how would you advise him to be a financial management? How would you like to guide them as a finance management? मतलब यू मस्ट हैव सम अमाउंट इन योर अकाउंट, मतलब Capital should be कैपिटल there. बिल्कुल होना चाहिए आपके पास में, और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेंटली आप लोग। मतलब अल्टीमेटली ऐसा है, कुछ पैसा आपके पास में होना ही चाहिए अकाउंट में, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ स्टार्ट करते हो तो देयर आर सर्टन ऑफ थिंग्स, जैसे कि कंप्लाइंस पार्ट हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया था, वो 1-1.5 लाख के आसपास का होता है बेसिकली, तो वो हमारा आउट ऑफ कैलकुलेशन हुआ, बट हमारा कैलकुलेशन थोड़ा बिगड़ गया उसी वजह से, क्योंकि हमें पता नहीं था एमसी पोर्टल पे कितना पैसा लगेगा, सर्विसेज कितने पैसे लगने Domains के वाले लिए भी हैं। है. यस, तो कंपनी लाइबिलिटीज बहुत सारी होती है। अगर आप पहले तो आप एमवीपी डेवलप ऐसे ही कर लो बिना पैसे से, मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब करना भी है तो सिर्फ एलएलपी कर लो या एलएलसी कर लो। हम लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टिंग में की क्योंकि हमारे कंप्लाइंस जल्दी स्टार्ट हो गए उस वजह से, तो वी हैड टू स्पेंड सम 1.5 लाख अराउंड रुपीज ऑफ इन द कंप्लाइंस ओनली, तो वो भी एक था। तो So फाइनेंशियली is there स्टेबल होना any आपको बहुत difference जरूरी है। between that you said compliance and LLP? हाँ, कंप्लाइंस पार्ट में ही आता है बेसिकली ये, तो No, कंपनी so के ना what is the difference between like major difference or minor differences? प्राइवेट लिमिटेड क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फंड रेज करने के लिए जा रहे हैं अल्टीमेटली इन फ्यूचर, तो योर कंपनी मस्ट बी प्राइवेट लिमिटेड बाय शेयर्स होने चाहिए आपकी कंपनी ऐसा। और एलएलपी में ऐसा होता है कि कुछ कंप्लाइंस पार्ट में होता है कि डिफरेंट होती है फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड, उसमें कुछ कंप्लाइंस एट ओन करना पड़ते हैं जो कि कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, तो उसको उसमें चेंजेस होते हैं। और कोई भी वीसीज होती है जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो लोग एलएलसीज में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं उसको प्राइवेट लिमिटेड करते हैं, ताकि जो शेयर्स रहेंगे वो लिमिटेड रहेंगे बाय डायरेक्टर्स, अल्टीमेटली ऐसा होता है। And how do you maintain the culture and decorum of your companies? Like culture employees and the corporate things they have na culture kind of stuff. Culture and ethics. तो कल्चर्स के लिए तो हम तो काफ़ी छोटी कंपनी है, अभी 8-10 लोगों की टीम है हमारे पास में, और मोस्टली शायद बाहर ही काम करते हैं, 3-4 लोग ही हम लोग आपस में बस हंसी मजाक करते रहते, कल्चर ही है हमारा अल्टीमेटली। Okay. And how would you like to that if you're thinking about global expansions? So what steps you should take? तो ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए तो अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास में, बट वी हैड ट्राइड एक्सप्लोरिंग दुबई मार्केट,
बट वहाँ के जो टैक्सेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो पहले तो हम लोग हमारे सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम लोग बहुत जल्दी डेवलप हो जाएँ दुबई मार्केट में भी। तो इट वुड टेक टाइम बट हैव प्लान्स। And how do you manage your time, like family time, personal time, and आप अगर एंटरप्रेन्योर बन रहे हो entrepreneur तो time? फैमिली टाइम और मी टाइम भूल जाओ। Okay. 24 घंटे आपको काम ही करना है। So how do you manage your time? Just like timetables, schedule, time schedule. टाइम शेड्यूल ऐसा है कि मतलब वैसे तो काम 24 घंटे ही करना है, बट आई हैव डिसाइडेड कि जैसे कि हम लोग पहले प्रोडक्ट लॉन्च स्टेज में थे, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड टू गो इन दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला पार्ट। उसी की मीटिंग्स लेना है या उसी के ऊपर दिन भर लगे रहना है। तो आधा दिन में, अभी आज की बात करूँ मैं, तो आधा दिन में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ध्यान देता हूँ और आधा दिन में सेल्स पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि सेल्स नहीं होगी तो सब Sales कुछ is खराब more करना रहेगा। important. यस। तो मॉर्निंग में जो हमारा 10 से 2 के बीच का टाइम होता है, मोस्टली मैं वो मार्केट में गुजारता हूँ। उसके बाद फिर 2 से 6 के बीच में मैं ऑफिस में आके या कॉल पे या फिर टीम से कनेक्ट करता हूँ, अल्टीमेटली ऐसा। और उसके बाद में फिर कुछ भी अपडेट्स होती है मैं 6 के बाद वो कंप्लीट करता हूँ। And if an employee came to you for like an innovating idea, so would you like to support it or like just think about it? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हम लोग, तो इन्हीं से आइडियाज़ ले लेके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हमेशा एक दिमाग से काम नहीं होता है अल्टीमेटली। यू विल हैव टू अप्रिशिएट पीपल हु आर ब्रिंगिंग समथिंग ऑन द टेबल, चाहे वो इनोवेटिव हो या नहीं हो। अगर इनोवेटिव नहीं है तो उसको बताएंगे कि इसको कैसे आप और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। कुछ भी लेके आए तो उसमें कुछ चेंजेस हमेशा होते हैं, बट आई ऑलवेज अप्रिशिएट द आइडियाज कमिंग ऑन माई वे। So like what is your enterprise name? 34 आइडियाज सिंगल प्राइवेट लिमिटेड, और प्रोडक्ट नेम No, इज योर that's सेलॉन। yeah. So it is kind of a brand वी आर बिल्डिंग। building. So can you please tell me that what is the process to being a brand? द प्रोसेस ऑफ If you're starting from scratch of a Okay. particular service or product, then how should सबसे you? पहले तो आपका प्रोडक्ट थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए। आप कुछ ब्रांड, अगर आपको मार्केट में अपना पोजीशन करना है तो उसके बाद में फिर ट्रस्ट बहुत बड़ा एक फैक्टर रोल प्ले करता है ब्रांड बनने में। जैसे हम लोग टाटा का नाम सुनते हैं तो ट्रस्ट वाला साइन आता है, गुडविल एग्री सीन आता है। तो रीज़न है कि टाटा ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा काम किया है। बीच में कुछ आपने सुना होगा, टाटा डोकोमो Yeah. भी बाद में बंद हुई थी। तो एक्चुअली वहाँ पे एथिकल इश्यूज कुछ थे, क्योंकि साइरस मिस्त्री अपॉइंट हुआ था, बट फिर रतन टाटा जी ने उनको हटाया और फिर से टेक ओवर किया और टाटा डोकोमो को लेट गो किया। डोकोमो वो जापानीज कंपनी जो भी थी, उसको लेट गो किया। तो अल्टीमेटली जो हमारे कोर वैल्यूज़ हैं, जो आपने स्टार्टिंग करने पे, जैसे मेरा ध्यान हमेशा ये रहेगा कि सैलून्स को मैं लेवल अप कैसे करूँ। तो जो कोर वैल्यूज़ को लेकर मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, उसको कंसिस्टेंटली मेरे को मार्केट में एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। तो ब्रांड के साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, इट्स नॉट शॉर्ट टर्म प्रोसेस, तो टाइम लगता है इस चीज़ में, बट यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर। And Things. like if you just recently said that sales is important in every businesses, so how did you that manage the marketing stuff? What is your most popular or effective marketing campaign? अभी तक तो हम लोगों ने ऑफलाइन ही ट्राई किया है। सोन वी गोना लॉन्च ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो हम लोग वहाँ पे भी So करेंगे। how did you approach your online marketing? वॉकिंग Just walking. I No use- I ads just- and no something. नो, अभी कोई एड्स वगैरह लगाए नहीं हम लोगों ने। हम लोग सिर्फ लीड्स निकालते हैं, वी वॉक इन द सैलून्स एंड पिच आवर प्रोडक्ट। And like if you want to be a digital, so what kind of marketing, organic or like something? वी डेफिनेटली गोना हैव ऑर्गेनिक मार्केटिंग इन दैट। तो हम लोग कुछ इन इंस्टाग्राम में हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, अभी आपको जल्दी हम लोग बताएंगे उस बारे में। Okay, so can you please give me some last quotes of yourself to our audience so that they could be appreciated towards entrepreneurship? Okay, so that's a tough one. Something like experience or your personal thoughts. तो टू बी ऑन यू विल हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मैं ये चाहूँगा मेरे साथ ही mostly मुझे थोड़ा सा पता है, और मास्टर में मास्टर तो सारी चीज़ें पता चाहिए। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर नया बनना है तो शुड बी रेडी टू